ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬਵਾਲ। ਇੱਕ ਸੁਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼। ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਬੋਲੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ 3 ਪਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਟੈਕ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਬੋਲੇ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਈਰਾਨ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਈਰਾਨ ਨੇ 20 ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਦਾਗੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਬੋਲੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਗੋਪੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ISI ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਗਨਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ IAS ਬਬੀਤਾ ਕਲੇਰ ਤੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਨਮੈਨ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 52 ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਦੀਪਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵੌਇਸ ਨੋਟ 'ਚ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਪਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਈਰਾਨ ਦਾ। ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਔਰ US ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। US ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਦਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਈਰਾਨ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਤਰਾਸਦੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਖਾਮੇਨਈ ਦੀ USA ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ PM ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਮਿਸਾਲ। ईरान ने एक मिसाइल अटैक किया। अभी जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया था, उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ईरान की तरफ से शायद रिटेलिएशन होगी। ऐसा ही हुआ। फ़िलहाल यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो बेसमेंट्स में हैं, वो शेल्टर्स में हैं, बंकर्स में हैं और अभी सिग्नल नहीं दिया गया है बाहर निकलने के लिए। फ़िलहाल लोगों को जो है कुछ देर तक अभी बंकर्स में ही रहना होगा। इस तरीके की खबर आई थी अभी कि जो प्रोग्राम था इवैक्यूएशन का, जो भारतीय नागरिक हैं उनका शायद इवैक्यूएशन नहीं होगा। जिस तरीके से US ने ईरान पे अटैक किए थे, लेकिन वो खबर सही नहीं है। बल्कि यहाँ पे बिल्कुल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भारतीय नागरिक हैं जो यहाँ पे इसराइल में हैं और ये अब वापस भारत लौट रहे हैं वाया जॉर्डन के रास्ते से। जिस तरीके से हम भी जॉर्डन के रास्ते से आए और ये भी वहाँ जाएंगे। आप बताएं कि क्या कहना चाहेंगे। आप वापस जा रहे हैं तो क्या लग रहा था यहाँ पे? आपको सेफ नहीं लग रहा था? नो, वी आर कम्प्लीटली सेफ और हमें काफ़ी अच्छा लगा। द इंडियन एम्बेसी ने हमको असिस्ट किया एंड दे रिक्वेस्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड वी गॉट द ईमेल एंड ऑल द हेल्प गिवन टू अस बाय द इंडियन एम्बेसी एंड द कोऑर्डिनेशन वाज वेरी गुड। तो यहाँ पे इंडियन एम्बेसी की तरफ से इन्हें काफ़ी हेल्प की गई है और इंडियन एम्बेसी इंश्योर कर रही है कि ये सेफली रिटर्न हो भारत। और आप बताएं कि आप वापस जा रहे हैं
तो अभी यहाँ पे कहाँ थे और किन हालात में वापस जा रहे हैं? हम अभी रामतगंज सिटी में थे और इंडियन एम्बेसी ने हमको ऑर्गेनाइज सब फ्लाइट किया वाया जॉर्डन से, तो हम सेफली वहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी कितने लोग हैं? काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। हमारे डायमंड बुर्स के करीबन 50 लोग हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताएं कि अभी एम्बेसी की तरफ से अच्छे इंतजाम किए गए, अच्छी बसेस प्रोवाइड की जा रही हैं और आपको सेफली जो है यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। आपका रिएक्शन? हाँ, बहुत अच्छे से किया जा रहा है सब कुछ, क्योंकि मैंने दूसरे कंट्री के सिटीजन से सुना है कि उन लोगों का गवर्नमेंट बोल रहा है तुम लोग खुद बॉर्डर क्रॉस कर लो और फिर हम उधर से रिसीव कर लेंगे, बट हमारा इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं है। हम लोग को पूरा का पूरा मतलब अपने एरिया से, एम्बेसी से लेकर के पूरा इंडिया तक, इनफैक्ट शायद अपने स्टेट तक पता देखिए यही तो ब्यूटी है इंडियन एम्बेसीज की। न सिर्फ यहाँ बल्कि ईरान में भी जो स्टूडेंट फंसे हुए थे उनको भी इवैक्यूएट कराया जा रहा है। 2-3 बार उनके जो है ये आ गए हैं बैग्स और अभी भी उनको वहाँ पे इवैक्यूएट किया जा रहा है, चाहे वो अब इसराइल हो या फिर ईरान। ये कहा जा सकता है कि इस युद्ध के बीच भारतीय नागरिक जो हैं उनकी सुरक्षा जो है वो इंश्योर किया जा रहा है ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। जैसा मैंने कहा बच्चे भी यहाँ पे। आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, कहाँ रहते हैं आप? बॉम्बे। आप बॉम्बे से हैं और यहाँ पे काम करते थे? मेरे हस्बैंड। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी आप यहाँ से जा रहे हैं, इंडियन एम्बेसी की तरफ से अच्छे अरेंजमेंट्स हैं? हाँ, अच्छे रहेंगे। यू आर क्वाइट हैप्पी? यस यस। तो यहाँ पे चूंकि एक कंसर्न रहता है जब जंग जैसी सूरत हाल होती है, हालांकि हम जर्नलिस्ट जो हैं जंग में कूद जाते हैं, लेकिन जो नागरिक होते हैं किसी भी कंट्री में वो वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो सेफ्टी और उसके बावजूद उसके बगैर भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग और भी मुझसे बात करना चाहेंगे, जी बताएं। I think we are very proud Indians. Indian government are supporting us in each and every way possible. They are helping us to evacuate. I am here for a summer internship program, and they are helping us in each and every way. देखिए सारे लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा जितने भी भारतीय नागरिक हैं, न सिर्फ यहाँ से बल्कि ईरान से भी उनका इवैक्यूएशन हो रहा है। तो एक अच्छे एफर्ट के तहत इंडियन एम्बेसी ने इनका इंतज़ाम किया है। देख सकते हैं आप, ऑन एम्बेसी ऑफ इंडियन ड्यूटी, ये बस नंबर 2 है और भारत की तरफ से यही तो ब्यूटी है इंडियन एम्बेसीज की तरफ से। जब भी कोई फंसा रहता है तो उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी हेल्प के लिए इंडियन एम्बेसी सामने आती है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है वॉर जोन में। जी हां, हम इसराइल में हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान युद्ध जारी है। लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से इसराइल पर, और इसराइल की तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। और इसराइल का दावा है कि वो ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमले कर रहे हैं और वो काफ़ी डीप गए हैं उन माउंटेन्स पे जहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और जहाँ तक टेल अवीव या हाइफा की बात है, काफ़ी नुकसान पहुँचा है ईरान के हमलों से, और ईरान ने काफ़ी सारे ऐसे मिसाइल दागे हैं इसराइल पर जिससे इसराइल का आयरन डोम जो है जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा था उसको इवेड करके हाइफा को नुकसान पहुंचाया या टेल अवीव टहल उठा मिसाइल के हमलों से। तो अभी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है पूरे मिडल ईस्ट में या ईरान में। हालांकि अब सबकी नज़रें इसी चीज़ पे हैं कि क्या अमेरिका इस युद्ध में उतरेगा। अगर अमेरिका इस युद्ध में उतरता है तो बिल्कुल इस युद्ध का रुख ही बदल सकता है। लेकिन अभी पहले ही व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था और बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद 2 हफ्ते में अपना फैसला सुनाएंगे कि क्या वो इस युद्ध में उतरेंगे या जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में यहाँ पे जिस तरीके के हम हालात देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं मैं हाईवे पे चल रहा हूँ चूंकि एयरपोर्ट यहाँ पे लगातार बंद है, हवाई राबता लगातार कटा हुआ है 12 और 13 की रात से ही, क्योंकि जिस तरीके से 12 और 13 जून की रात को इसराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए, उसके जवाब में जब ईरान ने लगातार कई बार मिसाइल अटैक किए, पहले तो ज़्यादा इसराइल को नुकसान नहीं हुआ, उसके बाद जब हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया ईरान ने तो उससे दहल उठा यहाँ पे हाइफा भी और टेल अवीव भी, और भी कुछ एरियाज को नुकसान हुआ। यहाँ का एक हॉस्पिटल जो है उसमें काफ़ी डैमेज हो गया। हालांकि इसराइल का ये कहना है कि हॉस्पिटल पे डायरेक्ट अटैक किया गया है, लेकिन ईरान का ये कहना है कि वहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, आर्मी का एक ये कैंटोनमेंट था, हेडक्वार्टर था, उस पे हमला किया गया। लेकिन फिलहाल दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ से इसराइल की तरफ से गाज़ा पे भी लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। गाज़ा में भी काफ़ी लोगों की अभी तक मौत हुई है। जो रिलीफ के लिए लोग निकलते हैं उनमें से भी काफ़ी लोग मारे गए हैं इसराइली अटैक्स में।
तो ये कहा जा सकता है कि मिडल ईस्ट में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। हालांकि ये एक वाहिद हाईवे है जो इस वक्त कनेक्ट करता है इसराइल को, क्योंकि जॉर्डन के ज़रिए इसराइल पहुंचना पड़ता है। हम भी जब यहाँ पे पहुंचे तो बहुत ही मुश्किल सफ़र तय करना पड़ा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। और अगर हम जॉर्डन के रास्ते से आते हैं, एक एलन बाई ब्रिज है वो लेकिन 12:30 बजे ही बंद हो जाता है, और रात के 8 बजे तक एक और जगह पे जो है बॉर्डर खुला रहता है। लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है जो लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है इस हाईवे पे। थोड़ा सा मैं हाईवे की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि जो देश भर से, दुनिया भर से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनको यहाँ के हालात का अंदाज़ा हो सके, क्योंकि इसराइल जैसी जगह पे पूरा एयरपोर्ट लगातार बंद होना, उसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पहले लेबनान पे लगातार अटैक्स हो रहे थे, लेकिन इसराइल के साथ साथ लेबनान में भी हवाई राबिता बंद नहीं हुआ, लेकिन आप एयर स्पेस हर तरफ से यहाँ पे क्लोज कर दी गई है। काफ़ी सारी फ्लाइट्स को जो है वो डाइवर्ट किया जाता है, क्योंकि एयर स्पेस यहाँ इस मिडल ईस्ट में कई जगहों पे बंद कर दी गई। इसराइल में कोई भी फ्लाइट ऑपरेट नहीं करती है, और ना ही ईरान में फ्लाइट्स ऑपरेट की जाती हैं। और हालांकि ईरान में जो भारत के स्टूडेंट्स थे, काफ़ी सारे थे, उनको धीरे धीरे अब वापस लाया जा रहा है आर्मीनिया के रास्ते से। कल भी एक बैच जो है स्टूडेंट्स का दिल्ली पहुंचा। तो ऐसे में फिलहाल इस पूरे मिडल ईस्ट में या ईरान में जो है तनाव बहुत ज़्यादा जारी है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's, a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. Not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. और लड़ाई भड़कने की जो है एक चांस बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो शायद ईरान ही नहीं, कई और देश भी इसको बर्दाश्त ना करें। जैसे हाल ही में यमन ने तो अनाउंस भी कर दिया है कि वो भी ईरान के साथ इस लड़ाई में हिस्सा लेगा। तो इससे आगे क्या हो सकता है? अब आगे देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या अमेरिका कंटिन्यू करेगा या सिर्फ इस बॉम्बिंग के बाद बंद कर देगा। दूसरा, जो ईरान के मित्र देश हैं वो इस लड़ाई में आएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तीसरा, ये लड़ाई और कितना लंबी देर तक चलती है। चौथा, अमेरिका के जो ठिकाने हैं, मिलिट्री ठिकाने हैं मिडल ईस्ट और यूरोप में, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होगा,
क्योंकि ईरान ने तो साफ कह दिया है कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम इसका जवाब देंगे। ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। और तीसरा गुरुद्वारा साहब की मैं जानकारी देना चाहना, मेरी गुरुद्वारा साहब के स्टेट सकत्तर साहब नाल भी गल हुई है, उत्थों के ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨਾਲ ਵੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਣਗਣੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਸੇਫ ਔਰ ਸਾਊਂਡ ਨੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲਾਨ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਈਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਵਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ 35% ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। सच अभी तक तो सिर्फ ये पिछले 5-6 दिन से क्राइसिस आया है और उम्मीद है जल्दी हल हो जाएगा। ईरान हमारा तकरीबन 1 मिलियन टन चावल हर साल जाता है, जो कि 31 मार्च तक भी 1 मिलियन टन चावल हमने ईरान को भेजा है पूरे भारत से। और पिछले 2 महीनों में भी एक्सपोर्ट अच्छा हुआ है। और अभी 8-10 दिन में जो शिपमेंटें जानी थी वो फ़िलहाल होल्ड कर दी हैं क्योंकि वार की स्थिति है। वार की स्थिति में इंश्योरेंस ना वेसल का है ना माल का है, तो इसलिए होल्ड की हुई है। एज सच कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री पे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर वार होती है तो फूड कमोडिटी उस टाइम भी अलाउड रहती है। तो उम्मीद है कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर काम कर रही है, हमारे टच में है। ਤੇ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ IAS ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ IAS ਅਫਸਰ ਬਬੀਤਾ ਕਲੇਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਬੀਤਾ ਕਲੇਰ ਦੇ ਪਤੀ ਸਟੀਫਨ ਕਲੇਰ ਤੇ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਨਮੈਨ ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਬਬੀਤਾ ਕਲੇਰ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 22 ਤਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਨ ਐਂਡ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਮਸ ਭਰਿਆ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਮਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।